Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Hello students, welcome to virtual class. Myself Sagar Mahale, your English teacher, and today I am going to teach you English of standard 6th. The name of the topic today is the wild boar and the fox. Boar means jangli suar or fox means chalak lomdi. So we are going to see a small moral story of the wild boar and the fox. As everybody knows, ये है तस्वीर वाइल्ड बोर की, एक जंगली सुअर की. So, if anybody has not seen the wild boar, this is the picture of a wild boar. And this is the picture of a fox. Everybody knows about a fox. Everybody has seen a fox. So, the story is about a wild boar and a cunning fox. So, let's understand the meaning of wild animals. So, everybody knows about wild animals like tiger, leopard, cheetah, lion, giraffe, elephant. All those animals who live in forest are called as wild animals. And what are the domestic animals, students? Domestic animals are cow, buffalo, horse, जिन्हें हम पालते हैं, वो है domestic animals. और जो जंगलों में रहते हैं, वो है wild animals. Let's read the story first, and then we will understand it sentence by sentence. तो मेरे साथ पढ़े बच्चों. One day, a wild boar was sharpening his tusks against the bark of a tree. He was doing it very carefully. There lived a fox in the same forest. He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. When he saw the wild boar, he decided to tease him. He began to walk around the trees, looking left and right, and up and down. He also began to act as if he was really scared. But the boar did not pay any attention to him. He kept right on with his work. At last, the fox said with a grin, "Why are you doing that? I tried very hard, but I did not see any hidden enemy or danger." "True," replied the boar. "Just now there may not be any danger, but when it really comes, there won't be any time to sharpen my tusks. My weapons have to be ready for use then. If I am not ready, I will have to suffer." So students, in the last paragraph, you will know the moral of the story. This story tells us that it is best to be prepared. Don't leave things to be done at the last minute. अगर हिंदी में इस मॉरल को बताया जाए तो वो ये कहता है कि हमें कोई भी चीज के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए
तैयार रहना जरूरी है। जब परीक्षा नजदीक आ जाती है या कोई काम होता है वो एकदम से नजदीक आ जाता है, तब हम जाके सब तैयार करें तो सारी चीजें गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए कल पे कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, आज से शुरुआत करनी चाहिए। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, कल करे सो आज कर, आज करो सो अब। सो यही एक छोटा सा सार है इस कहानी का। अब हम पॉइंट बाय पॉइंट, सेंटेंस बाय सेंटेंस देखेंगे और सारे शब्दार्थों को भी ध्यान से पढ़ेंगे, जो भी मीनिंग्स है। ओके, लेट्स स्टार्ट। The wild boar and the fox. One day, the wild boar was sharpening his tusks. एक दिन एक जंगली सुअर, जो टस्क होते हैं उसके, जो बड़े बड़े दांत होते हैं, तो आपने ऐसे दांत किसी और जानवर में भी देखे होंगे बच्चों। यस, एलिफेंट में, एलिफेंट को भी अपनी सूंड के नीचे ऐसे दो बड़े बड़े दांत होते हैं, उसे भी टस्क ही कहा जाता है। तो वो जंगली सुअर क्या कर रहा था? He was sharpening his tusks. वो अपने जो दांत है बड़े बड़े, उसको धार लगा रहा था। जैसे हम चक्कू वाले को देखते हैं, हमारे घर के पास आता है, पुराने जो चक्कू या किचन के जो भी औजार होते हैं उसे धार करने का काम करता है। उसी तरह से वो अपने दांतों को एक बड़े से पेड़ से रगड़ कर उसे धार दे रहा था। He was sharpening. Sharpening means उसको धार देना। Against the bark of a big tree. तो वो कैसे धार दे रहा था अपने दांतों को? How he was sharpening his tusk? He was sharpening against the bark of a big tree. Bark means पेड़ का जो सबसे बीच वाला बड़ा हिस्सा होता है, उसे बार्क कहते हैं। और उससे घिस कर वो अपने टस्क को क्या कर रहा था? धार दे रहा था। He was sharpening the tusk against the bark of a big tree. Tusk means pointed teeth that some animals have. जैसे कि मैंने आपको कहा बच्चों, टस्क का मतलब क्या होता है? नोकीले और तेज धार वाले दांत होते हैं जो कुछ कुछ जानवरों में पाए जाते हैं। The wild boar was sharpening his tusk very carefully. Very carefully मतलब बड़े ध्यान से, सावधानी से। जो वाइल्ड बोर था, जो अपने दांतों को तेज धार लगा रहा था, वो कैसे लगा रहा था? बड़े ध्यान से और सावधानी से। So how will we say it in English? The wild boar was sharpening his tusks very carefully. Let's see what happens ahead. There lived a fox in the same forest. उसी जंगल में जहां पर वो जंगली सुअर अपने तेज नोकीले दांतों को धार कर रहा था, उसी जंगल में एक लोमड़ी यानी फॉक्स भी रहता था। और वो फॉक्स बड़ा नटखट था। देखते हैं उसकी नटखटता कैसे आपको नजर आती है इस कहानी में। Fox was always looking for a chance to make fun of other animals. Fox जो था वो हमेशा एक मौके की तलाश में रहता था कि कैसे दूसरे अन्य प्राणियों का मजाक उड़ाया जाए, उन्हें तंग किया जाए। अब नटखट इसी को तो कहते हैं। जैसे हम हमारी क्लास में भी कोई एक नटखट बच्चा होता है जो हमेशा किसी ना किसी को चिढ़ाते रहता है। लेकिन बच्चों, चिढ़ाना बहुत बुरी बात है। तो ये फॉक्स को इस कहानी के अंत में समझ आता है कि हमारी नटखटता की भी एक लिमिट होनी चाहिए। तो क्या कह रहा है नीचे वाला सेंटेंस, जरा पढ़िए तो। Fox was always looking for a chance to make fun of other animals. He was always looking for a chance. हमेशा एक मौके की तलाश में रहता था कि कोई
ऊंट मिल जाए, कोई हाथी मिल जाए, कोई शेर मिल जाए, उसका मजाक उड़ाया जाए और उसका दिन इसी टाइम पास में गुजर जाता था। He decided to tease Boar. अब वो वहीं से गुजर रहा था तो उसने उस जंगली सुअर को देख लिया कि बड़े से पेड़ की टहनी से अपने दांत घिसे जा रहा है और अपने दांतों को नोकीले और भी तेज करते जा रहा है, बड़ी तेज धार लगा रहा है। और उसने ये सोच लिया कि चलो इस जंगली सुअर का मजा लिया जाए, उसको थोड़ा सा चिढ़ाया जाए। टीज का मतलब होता है चिढ़ाना, डिसाइडेड का मतलब होता है सोच लेना या फैसला कर लेना। He decided to tease Boar. He began to walk around the trees. अब जब वो चिढ़ाने जाता है तो डायरेक्ट उस जानवर के पास या उस प्राणी के पास नहीं जाता, पहले उसके पास जाके इर्द गिर्द घूमता है, ऑब्जर्व करता है जानबूझ के, मानो कि उसका हम पे ध्यान ही नहीं है। He began to walk around the trees. यहां से वहां, वहां से यहां चलने लगा, चक्कर काटने लगा उस पेड़ के और जंगली सुअर की, द वाइल्ड बोर के। Looking left and right, up and down. जब वो टहल रहा था जंगली सुअर और उस पेड़ के इर्द गिर्द, तो वो कभी दाएं देखता, कभी बाएं देखता, कभी ऊपर देखता तो कभी नीचे देखता। तो वो ये चाहता था कि वो जंगली सुअर जो है वो खुद लोमड़ी से बात करे। He wanted, the fox wanted that wild boar should speak to me. That's why he was roaming here and there, looking left and right and up and down, so that he can attract the wild boar. But ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो चाहे जितने चक्कर काट ले, जंगली सुअर उसकी तरफ देखता ही नहीं, क्योंकि वो अपने काम में बहुत ही मग्न था। He was very busy in his work. But Boar did not pay attention. He was busy sharpening his tusk. जो बोर था वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। He was not paying attention. Attention का मतलब होता है ध्यान देना। So but Boar did not pay attention. He was busy sharpening his tusk. जैसे कि मैंने आपको कहा बच्चों, लोमड़ी चाहे जितने चक्कर काट ले उस पेड़ के, जंगली सुअर के, लेकिन जंगली सुअर अपने काम में बहुत ही मग्न था और वो अपना काम बड़े ध्यान से, सावधानी से करते जा रहा था। उसके पास वक्त नहीं था। वो जानता था कि ये लोमड़ी का रोज का है, कभी ना कभी किसी ना किसी को चिढ़ाना या किसी का मजाक उड़ाना, किसी को तंग करना, नाक में दम करना और परेशान करना, यही है लोमड़ी का पूरा दिन का टाइम पास। और वो ये जानता था, इसीलिए उसने लोमड़ी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। लेकिन लोमड़ी चक्कर काटते जा रही कि ये अब देखेगा, ये अब मुझसे बात करेगा, ये अब अपना काम छोड़ के मेरे पास आएगा। नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुआ। Why? Because the boar was busy sharpening his tusk. Sharpening का मतलब आपको बताया मैंने बच्चों, धार करना या और भी नोकीले करना। और tusk का मतलब भी आपको बताया, कुछ जानवरों में बड़े बड़े दांत होते हैं, उन्हीं को tusk कहा जाता है। Fox also began to act as if he was really scared. अब फॉक्स का पेशेंस, उसकी जो क्षमता थी इंतजार करने की, कम होते जा रही। अब उसने चिढ़ाने की शुरुआत की। कैसे शुरुआत की? जैसे आपको कभी किसी ने चिढ़ाया होगा, अरे बाप रे, मैं तो डर गया तेरे से, मतलब डरते नहीं है लेकिन डर रहे हैं ऐसा बताते हैं और चिढ़ाते हैं। तो वैसे ही फॉक्स बोर को एक्टिंग करके दिखाने लग गया। अरे आई एम सो स्कैर्ड, तुम इतने तेज धार कर रहे हो अपने टस को, मानो तो अब मुझे मार ही दोगे। ऐसे वो चिढ़ाने लग गया। The fox began to act as if he was really scared. Scared का मतलब होता है बच्चों
डरना या डरा हुआ फीलिंग अपने फेस पे लाना। He was एक्ट कर रहा था, सचमुच से नहीं डरा था। But the boar did not take any attention to him. बोर ने उसकी तरफ तब भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वाइल्ड बोर को पता था कि ये सिर्फ यहाँ पे टाइम पास करने आया है और मेरे पास इसके टाइम पास के लिए कोई वक्त नहीं। इसीलिए बोर ने उसकी तरफ तब भी ध्यान नहीं दिया जब वो डरने की एक्टिंग कर रहा था और उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। बोर अपने दांतों को पेड़ से घिसते रहा। उसने देखकर भी लोमड़ी को अनदेखा कर दिया। So how read the sentence? But the boar did not pay any attention to him. He kept on with his work. वो अपने काम को करते ही रहा। He kept on his work. वो ध्यान ही नहीं दे रहा था बिल्कुल भी। Because he knew ना, उसे पता था कि ये फॉक्स का रोज का काम है, तो मैं इसकी तरफ ध्यान क्यों दूं? At last, Fox said with grin, "Why are you doing that?" अब grin इस शब्द का अर्थ होता है बच्चों, तो चिढ़ाने की जो स्माइल होती है, एक कनिंग स्माइल, उसे ग्रिन कहा जाता है। तो आखिर में फॉक्स का भी पेशेंस खत्म हो गया। उसने कहा कि भाई तुम ये कर क्यों रहे हो, क्या कर रहे हो? ये तो पता था सबको, फॉक्स को भी पता था, लेकिन फॉक्स का ये कहना था कि भाई ये तुम क्यों कर रहे हो? इतनी देर से अपने दांतों को उस पेड़ से घिसते जा रहे हो। You are continuously sharpening your tusk from so much time. I am seeing you, but you are not ready to pay attention to me. You don't want to talk to me. At last, the fox only started the conversation. That, why are you doing that, Mr. Wild Boar? Let's see what Wild Boar said. Grin means smile. As I said, students, एक cunning सी smile होती है, जो खुशी वाली स्माइल नहीं होती। किसी को चिढ़ाने पे जो हंसी आती है ना, वैसी वाली स्माइल, उसे ग्रिन कहा जाता है। Fox said, "I tried very hard." फॉक्स ने कहा, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत हार्ड कोशिश की, लेकिन But don't see any hidden enemy or danger. मैं किसी भी छुपे हुए शत्रु को या खतरे को नहीं देख पाया। मैंने पूरे जंगल को छान मारा है, मैं पूरे जंगल में घूमते रहता हूँ, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। मुझे तो कोई छुपा हुआ खतरा या छुपा हुआ कोई दुश्मन नहीं नजर आया। तो तुम इतने मग्न क्यों हो मेरे भाई? कब से देख रहा हूं अपने दांतों को घिसे जा रहे हो। बात भी कर लिया करो। इतना क्या कौन सी परेशानी आ गई कि तुम इतने तेज धार कर रहे हो, मानो कि दुश्मन अभी आ जाएगा और तुम पे हमला कर देगा। वाइल्ड बोर को पता था कि वो अपने दांतों को तेज धार क्यों लगा, और फॉक्स जो था वो ये सोचने वालों में से था कि जब खतरा आएगा तब देख लेंगे। लेकिन वाइल्ड बोर वैसा नहीं था, क्योंकि उसे पता था अगर उसके दांत को शार्प नहीं किया अभी, तो जब खतरा आएगा तो वो ब्लंट मतलब बिना तेज धार वाले जो दांत हैं, वो दुश्मन के साथ लड़ाई करने में बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे। तो बच्चों, आपने इतिहास के कुछ ऐसे मूवीज देखे होंगे जिसमें दो राजाओं के बीच में जंग होती है, तलवार से, तेज धनुष बाण से वो लोग आपस में लड़ते हैं, तो उनकी तलवारों को तेज धार होती है। अगर उन तलवारों को तेज धार ना हो तो वो सामने वाले को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, और लड़ाई के दिन अगर मैं धार करने बैठ जाऊं तो उतने में तो दुश्मन मुझे मार के निकल जाएगा। और ये बात वाइल्ड बोर को पता थी,
लेकिन फिर भी फॉक्स उसे कैसे चिढ़ा रहा है, क्या पूछ रहा है कि भाई मैंने तो पूरे जंगल को छान मारा, मुझे तो कोई शत्रु नजर नहीं आया, मुझे कोई खतरा भी नजर नहीं आया, तो अभी से तुम काहे को इतना टस को शार्प कर रहे हो हैं? तो वाइल्ड बोर का जवाब सुनकर आप भी चौंक जाएंगे बच्चों। जानते हैं हमने उसने क्या कहा? ट्रू, जस्ट नाउ देयर मे नॉट बी एनी डेंजर। बोर ने कहा कि सही कह रहे हो मेरे फॉक्स भाई, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि आज जंगल में कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी दुष्ट शिकारी नहीं आया है या कोई भी बड़ा जानवर नहीं आया है जो मुझ पे हमला करे या तुम पे हमला करे। कोई भी खतरा नहीं है जंगल में, ये मैं जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। तो फॉक्स कहता है फिर क्यों? बट when it really comes there won't be any time to sharpen my tusk। जैसे कि मैंने आपको कहा बच्चों, ये बोर जानता था कि जब शत्रु आ जाएगा, कोई खतरा सामने अपनी आंखों के सामने नजर आ जाएगा, क्या तब आप पेड़ ढूंढते बैठोगे? क्या तब आप अपने दांतों को धार करते बैठोगे या उसके साथ लड़ोगे अपनी जान बचाने के लिए? तो बोर का ये कहना है कि फॉक्स तू तो शायद दुश्मन को देख के भाग जाएगा, मैं अगर भाग नहीं पाया तो मैं कम से कम लड़ तो सकूं, इसीलिए मैं अपने हथियार को धार लगा के रखना चाहता हूं। मैं तैयार रहना चाहता हूं कि अगर रात के अंधेरे में जब मैं सो रहा हूं तब भी अगर किसी ने मुझ पे हमला किया तो मैं उस हमले का सही जवाब दे सकूं, इसीलिए मुझे तैयार रहना है। Because what the boar said? The boar said, when it really comes, when the danger really comes, there won't be any time to sharpen my tusk. There won't be any time for me to be prepared. That's why I am preparing myself right now. Whenever the danger comes, चाहे फिर वो खतरा आए या ना आए, लेकिन मुझे तैयार रहना। देखो बच्चों, जैसे कि हमारी सरहद पर जवान होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, मिलिट्री सोल्जर्स, वायुसेना के सोल्जर्स, नेवी के सोल्जर्स, तो ये सारे सोल्जर्स के पास हथियार होते हैं, बंदूक होते हैं। वो हमेशा अपनी बंदूक को संभाल के रखते हैं और उसे रेडी रखते हैं, क्योंकि दुश्मन न जाने कब हमला कर देगा। या तब मैं गोलियां भरते रहूंगा बंदूक में, या बंदूक को साफ करते रहूंगा, या बंदूक की नली में जो साफ करते उसे अलग ब्रश से, तो वो ब्रश का इस्तेमाल मैं तब करूंगा? नहीं, मुझे अपनी बंदूक को हमेशा रेडी रखना। जब खतरा नहीं है तभी सारे काम करो, क्योंकि जब खतरा आ जाएगा तब आपको लड़ना होगा, तब आपके पास प्रिपरेशन का कोई टाइम नहीं होगा। जैसे कि आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों, आपके स्कूल में एग्जाम होती है। चलो इस साल कोरोना के वजह से शायद ही एग्जाम आपकी हो पाई है, लेकिन इससे पहले साल में जब आपकी एग्जाम्स होती थी, आप क्वेश्चन पेपर आपके सामने होता था, आंसर पेपर होता था, आप सवालों के जवाब लिखते थे, तो आपको एग्जाम स्कूल के पहले दिन पे ले लेते? नहीं, आपको पहले टीचर लोग पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं, फिर महीने 2 महीने बाद आपकी परीक्षा होती है, जितना पढ़ाया लिखाया उसके ऊपर। तो वो जो महीना 2 महीने का प्रिपरेशन टाइम होता है, उसमें आप सीखते हो, जवाब याद करते हो और फिर एग्जाम में उसका जवाब लिखते हो। अगर कोई बच्चा पूरे 2 महीने पढ़ाई ही ना करे और सीधा एग्जाम देने आ जाए तो क्या होगा बच्चों? क्या वो पास हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी पास नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि हमें इस जंगली सुअर से एक बड़ी सीख मिली, को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इंसान की जिंदगी में चुनौतियां बहुत आती है। उन चुनौतियों का सामना करना ये हमारा फर्ज है और कर्तव्य है। लेकिन अगर आप बिना किसी प्रिपरेशन के अगर आप उन चुनौतियों को फेस करते हो, चैलेंजेस को फेस करते हो, तो आप शायद अपयश आपको जरूर आएगा, मतलब आप जरूर हार जाओगे। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है, प्रिपरेशन है, तो फिर कोई भी लाइफ में चुनौतियां आए तो आप उसका डट कर मुकाबला कर सकते हो, और मेरी गारंटी है कि आप जीत भी सकते हो।
यदि आपका प्रिपरेशन, आपकी प्लानिंग बहुत सही है और आपने मेहनत ली है, तो आपको इस दुनिया में कौन सी भी चुनौती हरा नहीं सकती। तो बच्चों, वाइल्ड बोर से सीखने के लिए बहुत है। हमारे लाइफ में इर्द गिर्द ऐसे फॉक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें फॉक्स नहीं बनना है, हमें इस कहानी का वाइल्ड बोर बनना है। टू बी रेडी फॉर देम। तो तब जब बोर ने ये कहा कि मेरे पास तब टाइम नहीं रहेगा, इसीलिए मैं अभी से इसे शार्प कर रहा हूं, ताकि मेरे वेपन्स जो है, मेरे जो बड़े बड़े दांत हैं, वो हमेशा रेडी रहने चाहिए। क्योंकि जब भी खतरा आएगा, कोई खतरा इंसान की लाइफ में बता के नहीं आता। वो हादसा कभी भी हो सकता है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। इसीलिए हर इंसान को, हर जानवर को अपनी जो चुनौतियां होती है आने वाली अपनी लाइफ में, उसके लिए तैयार रहना चाहिए, अपने अपने हथियार तैयार करने चाहिए। और हम बच्चों की लाइफ में हमारे हथियार क्या है बच्चों? हमारी किताबें, हमारी पेन, हमारी नोटबुक्स, हमारा दिमाग, ये सब हमारे हथियार हैं। और हमें इन सारे हथियारों को रेडी रखना है, प्रिपेयर करना है। जब भी एग्जाम, कौन सी भी टीचर, कौन सा भी सब्जेक्ट दो मुझे एग्जाम, मैं रेडी हूं। और ऐसे रेडी आप कब रहोगे? जब आप नियमित तौर पे एवरी डे थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट का पढ़ाई करोगे, तभी आप प्रॉपरली उस चैलेंज को फेस कर सकते हो। If I am not ready, I will have to suffer। मतलब जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर आप रेडी नहीं रहोगे, आप प्रिपेयर नहीं रहोगे, तो आपको सफर करना पड़ेगा। सफर का मतलब हिंदी में होता है कठिनाइयों का सामना करना, या ऐसी दर्द भरी परिस्थिति में पहुंच जाना जिसके लिए जिम्मेदार आप होते हो। क्योंकि आपकी गलती की वजह से आप कभी कभी कठिनाई में पहुंच जाते हो, आपको सफर करना पड़ता है। इसीलिए वाइल्ड बोर क्या कहता है कि अगर मैं रेडी नहीं हूं, तो मुझे एक दिन जरूर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मुझे बहुत तकलीफ होगी, और मैं वो तकलीफ नहीं चाहता। इसीलिए मैं अपने दांतों को प्रॉपरली, टस्क को शार्प कर रहा हूं और रेडी रह रहा हूं। तो बच्चों, ये थी हमारी स्टोरी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस स्टोरी का मोरल क्या था कि हमेशा आने वाली चुनौतियों को अगर आपको डट के मुकाबला करना है, तो आपको तैयार रहना है। चुनौतियों के आने का इंतजार नहीं करना है, वो तो आने ही वाली है। हर एक के लाइफ में फिजिकली, मेंटली सारी चुनौतियां आती रहती है। उसे फेस करने के लिए आपको अभी से तैयार रहना। तो बच्चों, हम जरा नजर डालेंगे मीनिंग्स पे। वाइल्ड का मतलब मैंने आपको बताया कि जो जंगल में रहते हैं प्राणी, उन्हें वाइल्ड कहा जाता है, वाइल्ड एनिमल्स। और बोर का मतलब होता है वाइल्ड पिग, पिग यानी सुअर, वाइल्ड यानी जंगली। तो बोर को वाइल्ड पिग या जंगली सुअर भी कहा जाता है। टस्क का मतलब भी मैंने आपको बताया था, इंग्लिश में जरा देखेंगे उसका मीनिंग क्या है। A pair of long pointed teeth that some animals like the elephant have। बड़े बड़े पैर का मतलब क्या होता है? जोड़ी, दो दांतों की एक जोड़ी होती है। लॉन्ग पॉइंटेड टीथ, नुकीले और लंबे दांत होते हैं, जो किसी किसी प्राणियों में, ये जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया कि एलिफेंट, हाथी को भी बड़े बड़े लंबे और नुकीले दांत होते हैं। उसी तरह से जंगली सुअर को भी दो लंबे दांत होते हैं। बार्क, the tough outer covering of the main tree trunk and branches। टफ यानी क्या? मजबूत, कठिन, जो सतह होती है पेड़ की, बाहर की जो बॉडी होती है, उसे बार्क कहा जाता है। और बार्क पे ही वो अपने टस्क को शार्प करते रहते हैं। ग्रीन का मतलब मैंने आपको बताया स्माइल, एक कनिंग सी स्माइल होती है, जो किसी को चिढ़ाने के वक्त हम जो हंसते हैं या मुस्कुराते हैं, उसे चिढ़ाने के लिए, उसे उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे ग्रिन या स्माइल कहा जाता है। वो अलग प्रकार की स्माइल है। Listen carefully and answer the questions orally using only one word or phrase। तो मैं आपको इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न पूछूंगा बच्चों, आपको उसका ओरली जवाब देना है, एक शब्द में या एक फ्रेज में, एक मुहावरे में, जो भी उसमें सेंटेंसेस है उस तरह से।
First question. One day, a wild boar was sharpening his tusks against the bark of a tree. What was the boar doing? मैंने आपको ऊपर पूरा सेंटेंस दिया है, वो पूरे सेंटेंस में से आपको एक प्रॉपर फ्रेज या एक शॉर्ट आंसर तैयार करके कहना। तो बोर क्या कर रहा था? शार्पनिंग हिज टस्क। एक छोटा सा फ्रेज हो गया, या आप एक शब्द में भी उत्तर दे सकते हैं, सिर्फ शार्पनिंग। लेकिन सिर्फ शार्पनिंग ये आधा जवाब हो जाता है, इसीलिए हमने क्या लिखा? शार्पनिंग हिज टस्क। दूसरा सवाल, he was doing it carefully. How was he doing it? कैसे कर रहा था वो? जवाब ऊपर आपको ऊपर वाली लाइन में मिल जाएगा। He was doing it carefully. हाँ, तो how he was doing carefully, एक शब्द में जवाब carefully. There lived a fox in the same forest. Who lived in the same forest? A fox. When the fox saw the wild boar, he decided to tease him. जब फॉक्स ने वाइल्ड बोर को देखा तो उसने सोच लिया, उसने तय कर लिया कि इसे हम चिढ़ाएंगे। तो दो सवाल है इसमें। Who saw the wild boar? जरा ऊपर का सेंटेंस पढ़ो। When the fox saw the wild boar, he decided to tease him. तो बोर को किसने देखा? The fox ने। और दूसरा सवाल है, what did he decide to do? He decided to tease him. To tease, right? What he decided to? He decided to tease, यानी चिढ़ाना। But the boar did not pay any attention to him. Did the boar pay any attention to him? क्या बोर ने उसकी तरफ ध्यान दिया? No, he didn't. यानी no, he did not pay any attention. तो बच्चों, ये थे कुछ सवाल आपके टेक्स्ट बुक में से। Thank you, students. This was our today's lecture, and don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.